السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں انا یوسف۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائنز میں۔ سوئی نارتھرن کمپنی کا گیس چوری میچ بھی فکس نکلا، آپریشنز فوٹو سیشن تک ہی محدود، درج کرائے گئے بیشتر مقدمات کا ریکارڈ ہی نہیں، پولیس تفتیش میں کمپنی کے نمائندے پیش ہونے سے کترانے لگے۔ تباہ شدہ لائنیں مرمت کی جا چکی، ٹیکسٹائل صنعت کو شیڈول کے مطابق سپلائی بحال کریں گے، ابتما کی امداد پر شکر گزار ہیں۔ ایم ڈی سوئی نارتھرن گیس کمپنی عارف حمید کے ابتما رہنماؤں گوہر اعجاز احسن تنویر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ نقشہ جات کی منظوری، ایل ڈی اے کا اختیار ہائی کورٹ میں چیلنج، عدالت عالیہ نے بحریہ ٹاؤن کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی، پنجاب حکومت ڈی سی او ٹاؤن انتظامیہ ایل ڈی اے سمیت دیگر فریقین کی طلبی۔ پٹواری تحصیلدار ٹاؤن پلاننگ افسر ایک ہی دفتر میں دستیاب، ایل ڈی اے نے جوہر ٹاؤن کے پلاٹ کے ٹرانسفر کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا۔ دریائے راوی پر بننے والا پل سی این ڈبلیو اور ایل ڈی اے کے درمیان لٹک گیا، کئی ماہ گزر جانے کے باوجود پی این ڈی تعمیراتی کام کے لیے کمپنی کا نام فائنل کرنے میں ناکام، عمل درآمد اسٹڈی کے لیے 1 کروڑ جاری، منصوبے پر 16 ارب لاگت آئے گی۔ پنجاب میں اسامی وافر ہونے پر گریڈ 21 میں ترقی پانے والے 3 پولیس افسر، 6 ڈی ایم جی افسران کا پنجاب میں ہی تعیناتی کا امکان، محمد املش، امجد جاوید سلیمی، فاروق امین قریشی شامل۔ ادھر ایف آئی اے کے 4 افسر سینئر مینجمنٹ پوسٹ کے لیے نامزد، بشارت شہزاد، شجاع نوید، الطاف ارائیں اور جعفر شاہ شامل۔ اطہر علی خان کو ڈی جی پی آر پنجاب تعینات کر دیا گیا، جبکہ رفیع اللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی آر او مقرر کر دیے گئے، جبکہ ایوان وزیر اعلیٰ میں گریڈ 20 کے انرجی کوآرڈینیٹر کی نئی آسامی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں 11 تحریک التوا پیش، 8 کو مؤخر کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف بھی آدھا گھنٹے سے زائد اسمبلی میں موجود رہے۔ ڈکیتی مزاحمت پر فونکس کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ قتل، اسلامی بینک جوہر ٹاؤن کے گیٹ پر ڈاکو کیش وین سے 25 لاکھ لوٹ کر لے گئے، فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس وردی میں سنگین وارداتیں کرنے والے گروہ کے 3 ارکان گرفتار، تاجر اور طالب علم سمیت 7 افراد کو تاوان کے لیے اغوا کیا، معصوم بچی کیس کے ملزم تاحال گرفتار نہیں ہوئے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذوالفقار حمید کی پریس کانفرنس۔ ادھر کہنا رکشہ فیکٹری سے کروڑوں کا سامان لوٹنے والے 4 ڈاکو پشاور سے گرفتار، 3 کروڑ کا سامان اور نقدی برآمد۔ میٹرک اور انٹر کے طلباء گھر بیٹھے اسناد کی تصدیق کر سکیں گے، 1 مارچ سے آن لائن سسٹم فعال، ادھر 5ویں کا پیپر آؤٹ ہونے کی انکوائری شروع، انکوائری کمیٹی نے 25 سینٹرز کے امتحانی پرچوں کے بنڈلز چیک کیے، جبکہ کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کے تحت آن لائن امتحانی سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں مسماری کیس کی سماعت، عدالت عالیہ نے مسماری کے خلاف حکم امتناعی میں 17 فروری تک توسیع کر دی۔ نائجیرین ہائی کمشنر داؤد ادین لادی اور آئی جی ایم ڈی ابو بکر کا بادشاہی مسجد کا دورہ، مزار اقبال پر بھی حاضری، جبکہ نائجیرین کی آئی جی پنجاب خان بیگ سے بھی ملاقات۔ طبی معائنے کے لیے چودھری شجاعت حسین ٹی بی ہسپتال آمد، کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کھیل میں مشغول کرنا اچھا قدم ہے، اب بچے لیپ ٹاپ پر وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ادھر سابق ایم ایل اے اظہر خان یوسفزئی مسئلہ خاک میں شامل، چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے عوام کو ریلیف فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے۔ حدود اور علاقے پر پہلے تھانوں، اب خواجہ سراؤں کا ناچ گانوں پر جھگڑا، الگ الگ مقدمات میں گرو بشرا اور کاکا گروپ عدالت میں پیش، فرد جرم عائد، بدھائی یا دہائی، فیصلہ 12 مارچ کو ہوگا۔ ٹاؤن ہال میں خواجہ عمران نذیر اور ڈی سی او کا اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کے دفتر کا دورہ، مہم کے لیے تیار کیے گئے ٹرک کا معائنہ، ایم پی کا کہنا ہے کہ وابستگی کا عنصر ختم کرنے کے لیے سینٹرل یونٹ بنایا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ دریائے راوی میں گندے پانی کے حوالے سے اقدامات آخری مراحل میں ہیں، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ لگانے کا کام واسا کے بجائے ریور راوی پروجیکٹ مکمل کرے گا۔
फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में ऑल पाकिस्तान बैनुल-कुलियाती तकरीरी मुकाबले। अंग्रेजी में KE यूनिवर्सिटी के हम्माद शफी की पहली पोजीशन। उर्दू और पंजाबी तकरीर पर पंजाब कॉलेज के ज़ीशान अली, हाफिज मोहम्मद फैसल अव्वल। ट्रॉफी भी अपने नाम ले गए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जमान, वफाकी वजीर कामरान माइकल की आमद। सरबराह कौमी अवामी पार्टी अयाज लतीफ कलीजो और भारतीय सराफों का 48 रुकनी वफ्द लाहौर पहुंच गया। अंदरून शहर फूड स्ट्रीट को ब्राइडल पेंट्स खूबसूरत रंगों से सजाने में मसरूफ। फूड स्ट्रीट एक हफ्ते बाद दीदा जेब रंगों से सज जाएगी। चिड़िया घर में पिंकी चैंपियंसी की 14वीं सालगिरह का केक काटा गया। बच्चों ने गुनगुनाकर पिंकी को सालगिरह का मुबारकबादी पैगाम दिया। तकरीब में DD वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर्स और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। और सुबह के वक्त हल्की धुंध रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं है। नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में गैस चोरों के खिलाफ दर्ज बेशतर मुकदमात का रिकॉर्ड न होने की वजह से अफसरान और मुलाजमीन तज़ब्ज़ुब का शिकार है। कंपनी मुलाजमीन ने कारकर्दगी दिखाने के लिए मुकदमात तो दर्ज करवा दिए, लेकिन तफ्तीश शुरू होने पर मुद्दई पेश होने से कतराने लगे। शाहिद सिप्रा की ये रिपोर्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आरिफ हमीद की जानिब से शहर में गैस चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की खुसूसी दिलचस्पी के बाद गैस चोरों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। सराय ने बताया कि लाहौर रीजन में गैस चोरों के खिलाफ दर्ज 6 मुकदमात सबूत की अदम फराहमी की वजह से खारिज हो चुके हैं। ज़्यादातर जो रेड्स हैं वो मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ही हुई हैं। अगर उनकी प्रेजेंस के बावजूद बाद में वो FIR खारिज हो गई हैं तो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। सुई गैस हुकाम की जानिब से थाना काहना में गैस चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसकी तफ्तीश DSP बागबानपुरा सर्कल के सपुर्द की गई। पुलिस अफसरान की जानिब से मुतादिद बार सुई गैस हुकाम को तफ्तीश के लिए तलब किया गया, लेकिन वो पेश न हुए, जिसके बाद DSP बागबानपुरा की जानिब से मैनेजिंग डायरेक्टर को मरासला भेजा गया। MD आरिफ हमीद का कहना है कि मुकदमात में मुद्दई कम होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि FIR 1 या 2 ऑफिसर्स की तरफ से ही ज़्यादातर कटी हैं और उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ थाने बुलवा लेते हैं या मुख्तलिफ ऑफिसर्स बुलवा लेते हैं, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर जगह, क्योंकि 1000 से ज़्यादा FIR इस वक्त तक रजिस्टर्ड हैं। जराये के मुताबिक बागबानपुरा केस का रिकॉर्ड कंपनी के पास मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से अफसरान और मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लखुडेर के इलाके में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन टास्क फोर्स पर गैस माफिया की जानिब से पथराव किया गया। पुलिस की मौजूदगी में माफिया ने हवाई फायरिंग करके ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक उन्हें इत्तला मौसूल हुई थी कि लखुडेर के इलाके में माफिया की जानिब से वसी पैमाने पर गैस चोरी की जा रही है, जिस पर टास्क फोर्स ने ऑपरेशन करने की कोशिश की तो माफिया की तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू हो गया। पथराव की वजह से कंपनी की गाड़ी के शीशे टूट गए, जबकि 2 मुलाजमीन भी जख्मी हुए। MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आरिफ हमीद का कहना है कि धमाकों से तबाह होने वाली तीनों पाइपलाइन कंडीशन कर दी गई हैं। गैस बंदिश पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर अपटमा और सारिफीन के मशहूर हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को शेड्यूल के मुताबिक गैस फराहम की जाएगी। कश्मीर रूट पर मैनेजिंग डायरेक्टर SNGPL आरिफ हमीद ने अपटमा पंजाब के चेयरमैन SM तनवीर और सीनियर रहनुमा गौहर एजाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आरिफ हमीद ने कहा कि रहीम यार खान में धमाकों से तबाह होने वाली तीनों पाइपलाइंस को मरम्मत करके गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। 60 लाख की अदम अदायगी पर जिला कचहरी की बिजली का कनेक्शन 6 माह से मुनक़ता। बिल कौन अदा करेगा, फैसला ना हो सका। जनरेटर पर काम चलाया जा रहा है। जिला कचहरी में 21 मजिस्ट्रेट फौजदारी केसेस की समाअत करते हैं, जबकि 300 वकला के चैम्बर्स हैं। 6 माह कबल लेस्को ने 60 लाख रुपए बिल अदा न करने पर जिला कचहरी की अदालतों और वकला के चैम्बर्स की बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया, जिससे अदालती काम बुरी तरह मुतासर होने लगा। लाहौर पार्किंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने शाह आलम मार्केट में वाक़िआ फवारा चौक मोटरसाइकिल स्टैंड का दौरा किया।
तासीर राव का कहना है कि फवारा चौक पार्किंग कई सालों से नोटिफाइड है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ताहम इंतजामात बेहतर बनाए जा सकते हैं। शाह आलम फवारा चौक पर कायम मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड के दौरे के मौके पर तासीर राव ने कहा कि ये पार्किंग स्टैंड कई सालों से कायम है। LDA का पार्किंग प्लाजा इलाके की जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा। सांदा के इलाके में ख्वाजा सनाओं के 2 ग्रुप्स में नाच गाने पर झगड़ा। मजिस्ट्रेट राना इमरान शफी ने गुरु बुशरा समेत 6 ख्वाजा सराओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने दोनों ग्रुपों के 6 लोगों को 12 मार्च को तलब कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं शाहीन अतीक की रिपोर्ट। ख्वाजा सरा के बुशरा ग्रुप और काका ग्रुप के माबैन इलाके में नाच गाने की हदूद पर काफी अरसे से झगड़ा चल रहा है। बुशरा ग्रुप का कहना है कि इनके पास 1947 से नाच गाने का लाइसेंस मौजूद है, जबकि काका ग्रुप का कहना है कि ये इलाका इनका है। दोनों ग्रुपों के झगड़े पर सांदा पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। बुशरा ग्रुप का चालान अदालत में आने पर बुशरा ग्रुप के ख्वाजा सरा अदालत में पेश हुए। इनका कहना था कि गुरु इनका बाप होता है और वो अपने बाप की जगह को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। हमें बिलावजह तंग करने के लिए मुकदमात में उलझाया जा रहा है। हमारे पास प्रूफ है, दूसरी पार्टी के पास कोई कागज कोई कुछ नहीं है। अगर उनके पास प्रूफ है तो अदालत में लाकर अदालत से रुजू करें। हम जाते तो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, वो लड़ाई करते हैं, पुलिस थाने में चले जाते हैं झूठो। जुडिशल मजिस्ट्रेट राना इमरान शफी की अदालत में बुशरा ग्रुप के ख्वाजा सरा अपने वकील मोहम्मद असलम हयात एडवोकेट के हमरा पेश हुए। अदालत ने इनकी हाजिरी के बाद मड्डा, पिंकी, आसिया, नादरा और बुशरा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत में इनके वकील मोहम्मद असलम हयात का कहना था कि बुशरा के पास पाकिस्तान बनने के बाद का लाइसेंस मौजूद है, जबकि दूसरा ग्रुप ये लाइसेंस छीनने के चक्कर में है, इसलिए इनको मुकदमात में मुलव्वस कर रहा है। इनका जो मुद्दई मुखालफ है अशरफ उर्फ काका, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उस अशरफ उर्फ काका ने थाने सांदे की पुलिस से मिली भगत करके मड्डे को ब्लैकमेल करने के लिए उसके ऊपर ये झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया है। अदालत में काका ग्रुप के अरकान पेश न हुए, ताहम इनका एक साथी वहां आ गया जो अपना मुंह छुपाकर साहिलीन में घूमता रहा और साहिलीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। अदालत ने इस केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। नाइजीरियन हाई कमिश्नर दाऊद अदीन लादी और इंस्पेक्टर जनरल नाइजीरियन पुलिस MD अबू बकर का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मुस्तकबिल में ज्यादा मजबूत होंगे। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। नाइजीरियन हाई कमिश्नर दाऊदा दनलादी और इंस्पेक्टर जनरल नाइजीरियन पुलिस MD अबू बकर अपने 7 रुकनी वफ्द के हमरा PIA की परवाज PK 649 के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए नाइजीरियन पुलिस चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सकाफत को जानना और यहाँ वक्त गुजारना उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान आते रहेंगे ताकि दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जा सके। एयरपोर्ट से मुअज़्ज़िज़ मेहमान बादशाही मस्जिद गए और मुगलिया फन तामीर को सराहा। तबरुकात म्यूजियम में कदीम तारीखी तबरुकात भी देखे। बादशाही मस्जिद के दौरे के बाद उन्होंने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। It's historical, 350 years, and you can see the kind of monumental architecture that has been put there for 350 years. When there was no civilization, one wonders how the magic they used to build that mosque. The mosque is historic, and I'm glad that I was able to bring the Inspector General of Police to come and have a look at it. And he was highly impressed with the architectural design and the ingenuity that goes into the construction of the mosque. बादशाह नाइजीरियन वफ्द ने IG खान बेग से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर एडिशनल IG सरमद सईद, DIG अमजद जावेद सलीमी, तारिक मसूद यासीन, फैसल शाहकार, मोहम्मद ताहिर, तारिक मसूद यासीन और SSP मोहम्मद अली नेकोकार भी मौजूद थे। IG पंजाब खान बेग ने वफ्द के शुरका को CTD की तश्कील 9 के बारे में बताया और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तरबियत याफ्ता एहलकार भर्ती कर रहे हैं। नाइजीरियन पुलिस चीफ ने IG पंजाब से दहशतगर्दी से निपटने के लिए ट्रेनिंग में मदद के लिए कहा। IG पंजाब ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन ताउन करेंगे और जल्द ट्रेनिंग के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया जाएगा। नाइजीरिया के वफ्द ने निशात मिल्स गजुमता और सुंदर में ख्वाजा नासिरुद्दीन एंड सन्स कंपनी का दौरा भी किया। नाइजीरियन वफ्द ने निशात मिल्स के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। डायरेक्टर निशात मिल्स हफीजुर रहमान सदीक ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। जहाजों की कमी के बायस बुध के रोज भी कौमी एयरलाइंस की परवाजें मुतासिर रहीं, जबकि दिन भर अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी रहा। बता रहे हैं नबील रज़ा मलिक।
جہاز کم ہونے کی وجہ سے پی اے ای کی جدہ سے آنے والی پرواز 12 گھنٹے جبکہ اوسلو جانے والی 3 گھنٹے، کراچی جانے والی 7 گھنٹے، ملتان سے آنے والی 2 گھنٹے اور دہلی سے آنے والی 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار رہی، جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب پی اے ای کے اسلام آباد سے آنے والی پرواز پی کے 651 پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان لاہور پہنچے، جن کی آمد کے پیش خصوصی انتظامات کیے گئے۔ کراچی سے آنے والی شاہین ایئر لائنز کی پرواز 148 پر وفاقی وزیر برائے جہاز رانی و بندرگاہ کامران مائیکل بھی لاہور پہنچ گئے ہیں۔ ایئر انڈس کی پرواز 201 پر کراچی سے آمد کے موقع پر قومی عوامی پارٹی کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو کو ایئرپورٹ پر لاہور میں گزرے ایام کی یادوں نے جکڑ لیا۔ میرا بچپن کے کافی خوبصورت دن یہاں پہ گزرے۔ میرے والد اس شہر میں جیل میں تھے، رسول بخش پلیجو صاحب، تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں ان سے ملاقات کے لیے آنا ہوتا تھا۔ میو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے تو گوال منڈی میں ہم رہتے تھے، چوک برف خانہ کے پاس۔ تو ان علاقوں میں رہتے ہوئے لاہور کا جو ماضی تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ پی اے ای کی دہلی سے آنے والی پرواز پی کے 271 پر 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے 48 بھارتی سوناروں کا وفد لاہور میں منعقدہ نمائش میں شرکت کے لیے دہلی سے پہنچ گیا، جن کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ برائڈو پینٹ اور وولڈ سٹی اتھارٹی نے فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ کی عمارتوں پر قوس قزح کے رنگ بکھیر دیے۔ خوبصورت رنگوں سے مزین عمارتیں دلکش منظر پیش کرنے لگیں۔ عامر رضا خان کی یہ رپورٹ۔ اندرون لاہور بادشاہی مسجد کے فورٹ روڈ پر بنائی جانے والی فوڈ اسٹریٹ کے رنگ وقت کے ساتھ ساتھ پھیکے پڑ گئے تھے۔ ان عمارتوں کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے برائڈو پینٹ اور وولڈ سٹی اتھارٹی کے مابین 5 سال کا معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت کمپنی اپنے رنگوں سے ہر سال ان عمارتوں کی ظاہری حالت کو مختلف رنگوں سے مزین کرے گی، جس سے یہ فوڈ اسٹریٹ ہر سال نئے رنگوں سے اپنے آنے والوں کا استقبال کرے گی۔ برائڈو کی جانب سے اس کام کے نگران اسد محمود کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی کے افسران اور مالکان اس کام میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہمارے جو ڈائریکٹران ہیں عاطف سکہ صاحب اور جنرل مینیجر ساجد حسین بخاری صاحب، انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا اور وال سٹی کے ساتھ مل کے 5 سال کی ہم نے اسپانسرشپ کی ہے۔ ہر سال ہم اس کو پینٹ کریں گے اور ایک نیا رنگ اور ایک نئی جو فریش لک ہے اپنی ثقافت کی، اس کو ہم یہ لے کر آئیں گے۔ رنگوں سے مزین ان عمارتوں سے جہاں آنے والوں کو ایک دلکش احساس ہوگا، وہیں جہاں رہنے والے رہائشی بھی برائڈو پینٹ کے شکر گزار ہیں کہ ان کے گھر دلہن کی طرح سج گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت بنا دیا ہے ان لوگوں کو، ان گھروں کو، اور بہت بہترین برائڈو پینٹ والوں نے تعاون کیا ہے۔ پہلے سے بہت اچھا کیا ہے انہوں نے پینٹ، پہلے تو بالکل ہی خراب ہو گیا 1-2 بارشوں سے، لیکن اس وقت بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ پینٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ رنگ کسے اچھے نہیں لگتے، برائڈو پینٹ نے فوڈ اسٹریٹ کی بے جان عمارتوں میں اپنے رنگوں سے جان بھر دی ہے۔ فوڈ اسٹریٹ اندرون شہر ہمارے کلچر اور ثقافت کا ورثہ ہے۔ اس ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے برائڈو پینٹ نے یہاں کے گھروں کو خوبصورت اور قوس قزح کے رنگوں سے بھر دیا ہے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ چڑیا گھر میں چمپینزی پنکی کی 14ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ڈی جی وائلڈ لائف ڈائریکٹر چڑیا گھر بچوں اور بڑوں سمیت لاہوریوں کی کثیر تعداد نے سالگرہ تقریب میں شرکت کی اور خوب محسوس ہوئے۔ عمران یونس کی یہ رپورٹ۔ چمپینزی پنکی کی 14ویں سالگرہ کے موقع پر لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کی جانب سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی جی وائلڈ لائف ڈاکٹر شعیب اکبر نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈی جی وائلڈ لائف ڈاکٹر شعیب اکبر نے پنکی کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ ڈاکٹر شعیب اکبر کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے شہریوں میں جانوروں کے لیے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ ایک اویئرنیس ہو کہ یہ ایک بایو ڈائیورسٹی کے جو حوالے سے یہ ایک ایسٹ ہے اور لوگ اس چیز کو زیادہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ان سے ان کا پیار اور زیادہ بڑھے، اور سیلیبریشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ بہتر اس کی آگاہی ہو۔ اس موقع پر ڈائریکٹر زو نعیم بھٹی اور بچوں بڑوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ تقریب میں بچوں کی خوشی قابل دید رہی۔ بھائی کے ساتھ آیا ہوں، پنکی کو دیکھا بڑا اچھا لگا۔ پنکی کی ہیپی برتھ ڈے پہ آئی ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں یہاں بہت بار آئی ہوں اور پنکی کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔
तकरीब में मेहमानान करामी की जानिब से चिंपैंजी पिंकी को सालगिरह की खुशी में खाने पीने के तोहफे भी दिए गए, जबकि बच्चों ने पिंकी को सालगिरह मुबारक का पैगाम मखसूस अंदाज में गुनगुना कर दिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ इमरान यूनस, सिटी 42। पंजाब में आसामियां वाफिर होने पर ग्रेड 21 में तरक्की पाने वाले 3 पुलिस अफसरान और 6 DMG अफसरान का पंजाब में ही तैनात रहने का इम्कान है। महकमा सर्विसेज ने इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक इस वक्त पंजाब में ग्रेड 21 के एडिशनल IG की 14 असामियां हैं, जबकि ग्रेड 21 के DMG अफसरान की 16 असामियां हैं। पंजाब से ग्रेड 21 में तरक्की पाने वाले 3 पुलिस अफसरान मोहम्मद अमदश, अमजद जावेद सलीमी और फारूक अमीन कुरैशी हैं। इस तरह तीनों पुलिस अफसरान का पंजाब में ही रहने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने अतर अली खान को मुस्तकिल DGPR पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अतर अली खान इससे कबल कायम मकाम DGPR पंजाब थे। वो ग्रेड 19 के महकमा इंफॉर्मेशन के अफसर हैं। उनकी PRO2 वज़ीर आला की खाली होने वाली आसामी पर रफ़ीउल्लाह को तैनात किया गया है। हुकूमत ने इन दोनों अफसरान को फौरी चार्ज संभालने का हुक्म दिया है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के 7 अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद कर दिया है। सूबा पंजाब से जिन अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद किया गया है उनमें साइमा सईद, गुलजार हुसैन शाह, आमना इमाम, इफ्तिखार अली सहू, अली बहादुर काजी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और नसीम सादिक शामिल हैं। 24 फरवरी से शुरू होने वाला सीनियर मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने पर मज़कूरा अफसरान ग्रेड 20 में तरक्की के अहल होंगे। हुकूमत पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला में ग्रेड 20 के एनर्जी कोऑर्डिनेटर की एक नई आसामी का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐवान वज़ीर आला में ग्रेड 20 के एनर्जी कोऑर्डिनेटर की एक नई आसामी पर ताहाल किसी की तकर्रुरी नहीं हुई। दूसरी जानिब एडिशनल कलेक्टर लिया काशिफ मोहम्मद अली को फौरी तौर पर OSD बना दिया गया है। कमिश्नर RTO2 विद होल्डिंग जोन आसिम अहमद और कलेक्टर कस्टम कराची आमिर अहमद की खुशदामद की नमाज जनाजा कैबरी ग्राउंड खालिद मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में कस्टम, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस आसिम अहमद और कलेक्टर कस्टम आमिर अहमद की खुशदामद रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई थी। आसिम अहमद की खुशदामद की नमाज जनाजा खालिद मस्जिद कैलरी ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस नदीम रिजवी, कमिश्नर नदीम आरिफ, शाहिद सद्दीक भट्टी, मसूद अख्तर, एडिशनल कमिश्नर इम्तियाज अहमद, डिप्टी कमिश्नर नुमान मलिक, अली अदनान, सैयद नज़ीर रिजवी शरीक हुए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल अमीर हमजा गिलानी मरहूम की मैयत को कैंट में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अख्तर रसूल, जनरल आरिफ हसन, कासिम ज़िया और सैयद शाहिद अली समेत खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अमीर हमजा गिलानी बुध की सुबह अचानक तबीयत की खराबी के बायस इंतकाल कर गए। अमीर हमजा गिलानी की नमाज जनाजा और यूबिया मस्जिद कैंट में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन, PHF के सदर अख्तर रसूल, सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद, कासिम ज़िया, आसिफ बाजवा, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन सैयद शाहिद अली, खावर शाह, अरशद सत्तार, वकार अली, फौजी ख्वाजा, ख्वाजा खालिद फारूक, अकील भट्ट, सलमान भट्ट, चौधरी असगर, चौधरी आरिफ, मंजूर जूनियर और PHF के साबिक सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसरतुल्लाह ने शिरकत की। IG पंजाब खान बेग ने पुलिस अफसरान से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म और सदर ममलकत की सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से किसी भी सिक्योरिटी हिसार में कोई भी शख्स रख न डाल सकता है। इसलिए अफसरान खुद VVIPs की सिक्योरिटी को देखें। IG पंजाब खान बेग ने VVIPs की सिक्योरिटी बेहतर न होने पर CCP लाहौर और तमाम RPOs और DPOs से इजहार नाराजगी किया और एक मसला भिजवाया, जिसमें VVIPs की सिक्योरिटी कैसे बेहतर बनानी है इसके बारे में अफसरान को लिखा गया। IG ने कहा कि अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी में दिलचस्पी नहीं लेते। तहरीरी इकामात के बावजूद सिक्योरिटी इंतजाम में बद इंतजामी देखने में आई। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA एक्ट में तरमीम करके हाउसिंग सोसाइटीज़ के नक्शाजात मंजूर करने के इख्तियार के खिलाफ बैरिया टाउन की दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत, DCO, टाउन इंतजामिया, LDA समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में बहरिया टाउन की जानिब से टाउन इंतजामिया का नक्शे पास करने का इख्तियार LDA को देने के हुकूमती फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत में बहरिया टाउन के वकील अशर औसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हाउसिंग सोसाइटीज़ के नक्शे पास करने का इख्तियार टाउन इंतजामिया के पास है।
दरियाए रावी पर लाहौर से शादरा तक बनने वाले नए पुल का मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार। कई माह गुजर जाने के बावजूद PNT पुल की तामीर के लिए CNW और LDA में से किसी एक तामीराती एजेंसी का नाम फाइनल न कर सका। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चीफ सेक्रेटरी आरिफ अनवर बलोच की जेर सदारत शादरा से काला शाह काकू को एक्सप्रेस हाईवे के हवाले से जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन, सूबाई वज़ीर राना मशहूद अहमद, MD मेट्रो बस सुल्तान फजल हलीम, मेंबर PND डॉक्टर आबिद, सुल्तान अहमद असलम, नदीम उल हक समेत सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी CNW और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। LDA ने जोहर टाउन के प्लॉट्स की ट्रांसफर में दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया। प्लॉट कम अज कम वक्त में ट्रांसफर करने के लिए हर फाइल का जायजा लेकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अहद खान चीमा ने जौहर टाउन स्कीम में प्लॉट्स की ट्रांसफर के दौरान शहरियों को दरपेश मुश्किलात के अजाले और कम अज कम वक्त में उनकी दरख्वास्तों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन सेल कायम कर दिया है। डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट 1 मोहम्मद इमरान रजा अब्बासी की जेर निगरानी काम करने वाले इस खुसूसी सेल में एग्जाम्पशन, टाउन प्लानिंग, रेवेन्यू, एस्टेट मैनेजमेंट, लैंड एक्विजिशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान, नायब तहसीलदार और पटवारी तैनात किए गए हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के तहत ऑनलाइन इम्तिहानी सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। FCPS पार्ट 1 का रीजनल सेंटर में ऑनलाइन इम्तिहान लिया गया। CPSP की जानिब से ऑनलाइन इम्तिहानी निज़ाम का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में FCPS पार्ट 1 का ऑनलाइन इम्तिहान मुनाकिद किया गया, जिसके लिए रीजनल सेंटर और कराची हेड ऑफिस में इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। 70 बच्चों ने ऑप्शन इसको ऑप्ट किया, जो कि लाहौर और कराची सेंटर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है दे रहे हैं। और ये 2014 का साल जो है ये ऑप्शनल रहेगा, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और आप पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 2015 से ये पायलट प्रोजेक्ट के कामयाब तजर्बे के बाद 2015 से हम इसको कंपलसरी कर देंगे। MD वासा डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि दरियाए रावी में गंदे पानी को फेंके जाने के हवाले से इक़दाम आखिरी मराहिल में हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम वासा की बजाय रिवर रावी प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी डॉक्टर जावेद इकबाल ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर भर से गंदा पानी दरियाए रावी में फेंके जाने का मामला संगीन है, जिस पर वासा और रिवर रावी प्रोजेक्ट मिलकर मुशावरत के जरिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रावी के करीब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 4 मकामात को फाइनल किया गया है। पीपल्स पार्टी के साबिक MNA अजहर खान यूसुफजई ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली अजहर खान यूसुफजई ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद बशारत राजा और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान अजहर खान यूसुफजई ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि यूथ फेस्टिवल एक अच्छा कदम है। अब बच्चे लैपटॉप पर वक्त ज़ाया करने की बजाय खेल के मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर असद असम को आंखों का मुकम्मल चेकअप करवाया। सिटी 42 से बातचीत करते हुए चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह यूथ फेस्टिवल पर तवज्जो मरकूज है, इसी तरह लाहौरियों की तफरीह फराहम करने के लिए बसंत लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मनाई जाए। यूथ फेस्टिवल के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस इकदाम से बच्चों को अपना वक्त लैपटॉप पर ज़ाया करने के बजाय खेल के मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और DCO लाहौर ने तजावुज़ात के लिए कायम किए गए एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड का दौरा किया। टाउन हॉल में ख्वाजा इमरान नज़ीर और डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें इंसदादी तजावुज़ात मुहिम के लिए तैयार किए गए ट्रक भी दिखाए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर और DCO लाहौर का कहना है कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए 18 फरवरी से भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए खुशखबरी। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने असनाद की तस्दीक के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए तलबा घर बैठे अपनी सनद की तस्दीक कर सकेंगे और उन्हें लंबी कतारों में लगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जिन तलबा की सनद गुम हो गई हो वो भी मुतबादल सनद के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कंट्रोलर इम्तिहानात अनवर फारूक का कहना है कि सनद की तस्दीक के लिए लाहौर बोर्ड की वेबसाइट को 1 मार्च से अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद तलबा अपनी सनद के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।
रोटरी क्लब लाहौर शालीमार ने बाबा आम ग्लास को मलिक गुलाम रब्बानी आवान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया। इस हवाले से पीसी होटल में मुनक़िदा तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। पीसी होटल कश्मीर हॉल में रोटरी क्लब लाहौर शालीमार ने बाबा आम ग्लास को मलिक गुलाम रब्बानी आवान की दुनिया में अमन के फरोग के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल को वार्डन से झगड़ा महंगा पड़ गया है। गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उमर अकमल का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर को तहरीरी सिफारिश भिजवा दी है। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल का 10 रोज कबल फिरदौस मार्केट चौक पर इशारे की खिलाफ वर्जी के बायस वार्डन ज़ीशान से झगड़ा हो गया, जिस पर उमर अकमल के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज हुआ। उमर अकमल आजकल जमानत पर है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग ने सीटीओ सुहेल चौधरी को खत भिजवाया, जिसमें उमर अकमल का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश की गई। एफबीआर के क्रिकेट टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। फातेह अवार्ड डॉट एकेडमी की टीम, जबकि बेहतरीन ऑलराउंडर का अवार्ड मकसूद आलम के नाम रहा। शहर के चैनल पर एफबीआर मुलाजमीन के मसाइल को मुस्बत अंदाज में उजागर करने पर सिटी 42 के रिपोर्टर रिजवान नकवी को भी अवार्ड दिया गया। मौजे दरिया रोड पर वाक़े रीजनल टैक्स ऑफिस में एफबीआर मुलाजमीन की स्पोर्ट्स कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। तकरीब में क्रिकेट टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में ऑल पाकिस्तान बैनुल-कुलियाती तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। अंग्रेजी में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हम्माद शफी की पहली पोजीशन, जबकि उर्दू और पंजाबी जबान में तकरीर पर पंजाब कॉलेज के ज़ीशान अली और हाफिज मोहम्मद फैसल ने पहली पोजीशन हासिल करके ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में होने वाले बैनुल-कुलियाती तकरीरी मुकाबले में मुल्क भर से 22 तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी खिताबत के जौहर दिखाए। मारूफ दानिश्वर और राइटर मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौका पर प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फखर इमाम समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की बड़ी तादाद पंजाब असम्बली के इजलास में मुसव्वदा कानून कमीशन बराए मकाम निस्वा पंजाब 2013 मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। असम्बली इजलास की तफसीलात के लिए देखते हैं उमर असलम की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट से मुतालिक सवालात के जवाबात पार्लिमानी सेक्रेटरी गुलाम निजामुद्दीन सियालवी ने दिए। जमात इस्लामी के डॉक्टर वसीम अख्तर ने सवाल उठाया कि मैकेनिकल स्लॉटर हाउस शाहपुर कांजरा में बैक वक्त 500 बड़े जबकि 6000 छोटे जानवर ज़िबा करने से कबल तकबीर पढ़ी जाती है या नहीं। जवाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि यकीनन तकबीर पढ़ी जाती होगी। इजलास के दौरान हुकूमती रुकन रुखसाना कोकब की बार बार दीगर अरकान से गुफ्तगू पर स्पीकर असम्बली ने उन्हें बी केयरफुल कहकर डांट पिला दी। सहाफ़ी कॉलोनी में मेन हॉल में बच्चे की हलाकत पर सहाफ़ियों ने असम्बली इजलास की कवरेज का बायकॉट भी किया। इजलास में 11 तहरीके इल्तवाए कार पेश की गईं, जिनमें से 8 को मौखर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इजलास में शिरकत की और आधे घंटे से ज़ायद असम्बली में मौजूद रहे। हुकूमती अरकान असम्बली वज़ीर आला के साथ बैठते और अपने कामों के हवाले से तबादला ख्याल करते रहे। इजलास में तहरीके इंसाफ की सादिया सुहेल राना की तबीयत खराब हो गई और वह तिब्बी इमदाद के लिए इजलास से चली गई। असम्बली में मुसव्वदा कानून कमीशन बराए मकाम निस्वा पंजाब को मंजूर किया गया। मुसव्वदा कानून के हवाले से बात करते हुए वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब हुकूमत खवातीन की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। माशरे की तामीर और तरक्की में मजीद बेहतर किरदार अदा करने के लिए खवातीन को बाख्तियार बनाया जा रहा है। कानून की मंजूरी के बाद असम्बली इजलास जुमेरात की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अदनान अली के साथ उमर असलम, सिटी 42। और हुकूमती खवातीन अरकान असम्बली ने जहां खवातीन के हकूक के लिए पास होने वाले बिल पर खुशी का इजहार किया, वहीं सहाफ़ियों ने भी अपने हकूक के लिए एहतजाज किया। असम्बली के बाहर के मनाज़िर दिखा रहे हैं आमिर जान अपनी रिपोर्ट में। मुसव्वदा कमीशन बराए मकाम निस्वां पंजाब मंजूर होने से खवातीन अरकान असम्बली में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकूमती खवातीन अरकान असम्बली का कहना है कि इस कानून से खवातीन की मुआशरे में इज्जत बढ़ेगी। इस कमीशन का मेन मकसद यही होगा कि खवातीन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर सिफारिशात मुरतब की जाए। बड़ा अच्छा इक़दाम है हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे सिंक्रोनाइज हो गया प्लेटफॉर्म जिसमें विमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी को डील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मुसलसल दूसरे रोज भी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आए। उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सहाफ़ियों ने अपने मुतालबात पूरे ना होने के खिलाफ असम्बली से वॉकआउट किया और सीढ़ियों पर आकर नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो।
صوبائی وزراء احتجاج کرنے والے صحافیوں کو منا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس لے گئے، جنہوں نے مسائل کے حل کے لیے حمزہ شہباز کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی، جس پر صحافیوں کی جانب سے احتجاج ختم کر دیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ صحافی کالونی کے مسئلے ہیں اور جو اور مسائل بھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے حل پہ پہنچ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی رکن صوبائی اسمبلی سعدیہ سہیل کی اجلاس کے دوران بلڈ پریشر بڑھنے سے اچانک طبیعت بگڑ گئی، جنہیں ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر ڈار، سٹی 42۔ ایل ڈی اے میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کر دیے گئے، جبکہ ڈی جی پی ایچ اے نے افسران کی کمی کے باعث پنجاب حکومت سے 2 اسامیوں پر افسران کی تعیناتی کے لیے درخواست کر دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احد خان چیمہ کی ہدایت پر میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ میں تعینات ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ محمد شعیب اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ فرحان عباس کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات پروجیکٹ مینیجر اسٹریٹجک پالیسی یونٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ واسا میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریونیو توصیف احمد کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات مزید تقرری کے لیے ڈائریکٹر فائنانس کے حوالے کی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کے 4 افسران کو سینئر مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد کر دیا۔ کورس 24 فروری سے شروع ہوگا۔ سینئر مینجمنٹ کورس کے لیے ایف آئی اے سے ایڈیشنل ڈائریکٹر بشارت شہزاد، شجاع نوید، الطاف فرائیں اور جعفر شاہ کو نامزد کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نامزد کیے گئے بشارت شہزاد اور شجاع نوید لاہور میں، جبکہ الطاف فرائیں اور جعفر شاہ کراچی میں کورس کریں۔ سینئر مینجمنٹ کورس 24 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ گورنر ہاؤس میں شہید اعتزاز حسن کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں برائٹ فیوچر سوسائٹی کی جانب سے شہید نوجوان کے والد کو پیٹریوٹک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں پنجاب یونیورسٹی کے آئی بی اے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر احسان ملک، برائٹ ٹیچر سوسائٹی کے آرگنائزر سیمیول پیارا، شہید اعتزاز حسن کے والد مجاہد علی، فادر ندیم، شمیم صادق، ایمانویل فرانسک بھٹی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ 5ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ آؤٹ ہونے کے حوالے سے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے 6 رکنی وفد نے 25 سینٹرز کے امتحانی پرچہ جات کی سیلیں چیک کی۔ اساتذہ اپنی جان بچانے کے لیے دن بھر پرچوں کے بنڈلز اٹھائے پھرتے رہے۔ تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت ہونے والا 5ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ آؤٹ ہونے کی اطلاعات آئی تھیں، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے 6 رکنی وفد سمیرہ امبرین، عثمان بخاری، غلام مصطفیٰ، صبا سحر، نازیہ محل اور ایوب بخاری نے ایڈیو ایجوکیشن کے آفس میں 25 سینٹرز کے امتحانی پرچہ جات کی سیلیں چیک کی، جبکہ امتحانی سینٹرز کے چیئرمین اپنی جان بچانے کے لیے دن بھر پرچوں کے بنڈلز اٹھائے پھرتے رہے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ اگر پیپرز کی سیلیں چیک کرنی تھی تو امتحانی سینٹرز میں ہی چیک کر لیتے تاکہ انہیں اتنا خوار نہ ہونا پڑتا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحبان جو ہے نا، جو 19 اسکیل کے ہیں، ان پہ ذرا بھی اعتماد نہیں کیا گیا۔ پیپر آؤٹ ہوا تھا تو یہ جا کر ویریفیکیشن جو نا کلسٹر سینٹر میں ایٹ دا اسپاٹ ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا یہ وہاں سے اٹھا کر پہلے ہار روڈ گئے، ہار روڈ سے اٹھا کر انہیں پیک آ گئے، پیک سے آگے کہیں اور لے کر جائیں۔ انکوائری کمیٹی انگریزی کا پرچہ آؤٹ ہونے کے حوالے سے لاہور کے کسی بھی سینٹر سے کوئی ثبوت نہیں ملا، تاہم کمیٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب کے دیگر اضلاع سے پرچہ آؤٹ ہونے کے حوالے سے ابھی رپورٹس آنا باقی ہیں، جس کے بعد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ جنید ریاض۔ 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ مذمت کرنے پر سیکیورٹی گارڈ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کوکر چوک کے قریب واقع بینک اسلامی کے سیکیورٹی گارڈ رقم کیش وین میں منتقل کرنے کے لیے باہر لا رہے تھے، جنہیں بینک کے سامنے سروس روڈ پر سیاہ رنگ کی کار میں سوار 4 مسلح افراد نے روکا اور رقم چھیننے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی گارڈ نے وضاحت کی 2 ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے کیش وین کا سیکیورٹی گارڈ وارث جاں بحق ہو گیا اور ڈاکو 25 لاکھ کیش لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کی وردیاں پہن کر 7 افراد کو تاوان کے لیے اغوا کرنے والے ملزمان گرفتار۔ سی آئی اے پولیس نے ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز، گاڑی، پولیس یونیفارم، بلیو ریوالونگ لائٹ، موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذوالفقار حمید نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان خود کو پولیس افسر ظاہر کرتے تھے، تھانے لے جانے کا کہہ کر شہریوں کو اغوا کر لیتے، جبکہ ان کی رہائی کے لیے ورثہ سے بھاری رقوم بطور تاوان طلب کرتے۔ 1 ماہ قبل رکشا فیکٹری سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان لوٹنے والے 4 ڈاکو گرفتار۔ کاہنا پولیس نے ملزمان سے لوٹا گیا سامان برآمد کر لیا۔
कान्हा पुलिस ने गिरोह के 4 अराकीन को पेशावर से गिरफ्तार करके 3 करोड़ मालियत के रिक्शा, इंजन, मोटरसाइकिल, असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में नज़ीर पठान, अब्दुल रहमान, जान वली और जरशाद खान शामिल। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के मिसमारी के खिलाफ केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी करते हुए हुक्म इंतनाई में तौसीह कर दी। जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर की अदालत में लेडी वेलिंगटन अस्पताल की मिसमारी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल सैयद नैयर अब्बास और LTA के लीगल एडवाइजर वकार शेख एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लेडी वेलिंगटन अस्पताल को मिसमार नहीं किया जा रहा। अस्पताल की 2 केनाल 12 मरले अराजी मेट्रो बस मंसूबे में शामिल की जा रही है। सारिफ अदालत में गलत दावा दायर करने पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फरजाने का पहला फैसला। शादी तकरीब में खाना लेट पहुंचने का गलत दावा करने वाले दरख्वास्त गुजार को इकबाल टाउन के बावर्ची असलम को 20,000 रुपये फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया गया। सारिफ अदालत ने शाहदरा के काशिफ यासीन की तरफ से असलम बावर्ची के खिलाफ 7 लाख का दावा करने पर रजिस्ट्रार आसिफ नजीर को मुसालहती कौंसिल मुकर्रर किया। समाअत पर इकबाल टाउन के बावर्ची असलम ने बताया कि दरख्वास्त गुजार ने उसको मजदूरी की मद में 38,000 रुपये की रकम अदा नहीं की और अदायगी से बचने के लिए उसके खिलाफ झूठा इल्जाम लगाकर दावा दायर कर। ईवान सनत और तिजारत में IT ट्रेनिंग कोर्स के 11वें बैच के शुरका में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। लाहौर चैम्बर के सदर सुहेल लाशारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में लाहौर चैम्बर के नायब सदर काशिफ अनवर, सेक्रेटरी जनरल सैयद मोहम्मद सकलैन नकवी और कोर्स के इंस्ट्रक्टर कमर सिद्दीकी भी शरीक हुए। इंजीनियर सुहेल लाशारी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद हुनर से आरास्ता करने पर तवज्जो दे ताकि इंसानी वसाइल से फ़ायदा उठाकर मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में शामिल किया जा सके। दोस्ताना क्रिकेट मैच में मुगलपुरा 11 ने गोगो 11 को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में खेले गए मैच में गोगो 11 ने पहले खेलते हुए 40 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 250 रन बनाए। मोहसिन आफ्ताब करशी 50, शकील मलिक 45, अमीर अली 37 और सूफी नवीद ने 35 रन स्कोर किए। मुगलपुरा की जानिब से मोहम्मद अकील ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मुगलपुरा ने मत्तूब हदफ आखिरी ओवर में 9 विकेटों पर पूरा करके मैच अपने नाम कर लिया। शहर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक मौसम खुश्क रहेगा। शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में रहने के बाद लाहौर का मतला खुश्क, जबकि दर्जा हरारत भी इजाफा होना शुरू हो गया। गुज़श्ता रोज शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त 3 से 4 घंटे तक हल्की धुंध रहेगी, ताहम इससे रोजमर्रा के मामूलात पर असर नहीं होगा, जबकि अगले 2 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं और मौसम खुश्क रहेगा। आलमी सतह पर होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों ने लाहौर को भी मुतासिर किया है, मगर माहिरीन कहते हैं कि लाहौर में सर्दियों का दौरानिया किसी तरह भी कम नहीं हो रहा। तफसीलात के लिए देखते हैं रजा खरल की रिपोर्ट। अगर जनवरी के आखिर में मौसम अबर आलूद ना होता तो लाहौर के लिए शायद फरवरी मौसम बहार का पैगाम लेकर आ जाता। माहिरीन कहते हैं कि सदियों से लाहौरियों के लिए मौसम सरमा कभी तवील और कभी मुख्तसर रहा है। मौसमियात के माहिरीन कहते हैं मौसम सरमा के दौरानिये का इन्हसार जनवरी से लेकर मार्च तक होने वाली बारिशों पर होता है। 0 डिग्री पहले भी रिकॉर्ड हुआ करता था लाहौर में, अब भी हो रही हैं और -1 पे पहले भी गए हुए और अब भी बाज़ दफ़ा -1 में वो चली जाते हैं। इसी तरह जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी जून के महीने में रिकॉर्ड होता है और अब भी इसी तरह तकरीबन हुआ। आमतौर पर मौसम सरमा का आगाज नवंबर में होता है, जबकि दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते और जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द तरीन होते हैं, जबकि इस मौसम की तवालत ज्यादा से ज्यादा मार्च तक होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम सरमा के दौरानिये पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि मकामी मुहर्रकात हैं जो मौसम पर असरअंदाज होते रहते हैं, जैसे दरख्तों का ज़्यादा कट जाना और दीगर मुहर्रकात भी। दरख्त जहाँ ज़्यादा हों वहाँ मौसम की शिद्दत कम होती है और अगर दरख्तों का सफाया कर दिया जाए तो मौसम भी ज़्यादा बेरहम हो जाता है। 2013 और 2014 में सर्दियों में शिद्दत में इजाफा हुआ। लाहौर में जो टेम्परेचर है वो इस्लामाबाद से भी कम रहा काफ़ी अरसे तक, और उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी है और जो ड्यूरेशन है सर्दियों का वो ज़्यादा हुआ।
شدید موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لاہور کو پھر سے درختوں کا شہر بنایا جائے اور ایسی تعمیرات سے اجتناب کیا جائے جو شہر میں ٹریفک کی بھیڑ کا باعث بنتی ہیں۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ رضا کھرل۔ دیکھتے رہیے City 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔